Hello everyone. Welcome all of you to today's first episode of Voices of Meerut. I'm so happy to be starting this with all of you to spread more and more awareness about health issues in and around Meerut city. Today we have a young gynecologist who has done her MBBS from Maulana Azad Medical College and MS Obs and Gynae from Lady Hardinge Medical College, prestigious institute both from New Delhi. So, welcome Dr. Tanya Singhal. She has also done her fellowships in infertility and laparoscopic surgery, which makes her the perfect candidate to ask these questions. So, welcome Dr. Tanya. Hi, Dr. Rashri. Thank you for having me here today. We will discuss a very burning topic, which I'm sure that all of you have this query and you also must be getting this from everywhere. What is this infertility and why is it so prevalent these days? So, infertility is basically when couples experience difficulty in having children, and what our standard definition is that when a couple has been together having unprotected intercourse for 1 year and they're unable to conceive, so that is where we define infertility. So it is rising basically these days is because the lifestyle factors, because we are more career oriented, the late age of marriages, the late age of wanting to have a child and wanting to start a family, and then of course stress factors, environmental factors, air pollution is everywhere. So these are the other contributory factors. But naturally, it is increasing, right? Everywhere we Yes, see. it is increasing. Absolutely, it is. So naturally, what has happened is that people are getting married late, and from where the average age of marriage used to be early 20s, now it has shifted to late 20s or even early 30s or mid 30s. So, and naturally, having children, usually people would start planning it. In the first year of marriage. Now nobody even talks about it in first 3-4 years of marriage. So this has definitely gotten a shift in the paradigm, and therefore the infertility cases on the rise. Age is a very important factor, and of course the food, the fast food, the environment, the stress, the work stress, the career stress, everything, it is leading to contributing a lot to the rising cases of infertility. So, in the near future, I mean, रोज ये लोग ये बात पूछते होंगे आपसे भी, एंड आई डोंट थिंक वी कैन फाइंड अ वेरी क्विक फिक्स फॉर दिस. सो व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम, या वो कौन सा राइट टाइम ऐसा है व्हेन यू वांट पीपल टू कम टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम? वो टाइम क्या है? सो एज आई सेड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन 1 साल है, पर ये 1 साल उन कपल्स के लिए है हु आर एट एन अर्लियर एज. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बाय 35 अगर आप हैं, 35 से कम आपकी एज है और 1 साल आपकी हो चुका है अपने स्पाउस के संग रहते हुए, सो दैट इज़ द राइट टाइम. और अगर आप प्रॉब्लम हो रही है तो आप आए गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपना वर्कअप कराएं. बट अगर आपकी एज ऑलरेडी 35 से ज़्यादा है या इवन 40 से ज़्यादा है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप जल्दी गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, बिकॉज ऑफ द क्लॉक एक्चुअली स्टार्ट्स टिकिंग. तो ये आप लोगों के लिए बहुत नई इन्फॉर्मेशन है कि टाइम इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सो वेट एंड वॉच का इसमें टेक्निक नहीं लगानी है. मेक श्योर अगर आपको प्लान करना है तो आप जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएं, गेट द रिक्वायर्ड टेस्ट डन. एंड येस, यूजुअली लोगों को ये लगता है कि फीमेल के टेस्ट होने चाहिए, इसमें प्रॉब्लम है, या मेल का ये होना चाहिए. तो क्विकली मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे व्हाट आर दी स्पेसिफिक टेस्ट फॉर फीमेल्स जो एक बेसिक वर्कअप वो कराएं, जिससे कि उन्हें कुछ आइडिया हो सके कि हाँ भाई हम आगे इसमें और बेटर क्या कर सकते हैं. कमिंग टू द फर्स्ट हाफ ऑफ योर क्वेश्चन, सो आर सोसाइटी इज़ प्रोग्रेसिंग. पहले ये होता था कि पीपल यूज टू थिंक कि इनफर्टिलिटी सिर्फ एक फीमेल की वजह से होती है, बट लेट मी टेल यू द एक्चुअल डेटा. 50 to 55% केसेस ही फीमेल्स की वजह से होती हैं, 40 to 45% केसेस मेल्स की वजह से होते हैं. सो ऐसा नहीं है. पहले ऐसा होता था, अगर बेबी नहीं हो पा रहा होता था तो फीमेल्स अपनी मदर इन लॉस के संग आती थी, सास के संग आती थी, एंड उनका महीनों सालों उनका ट्रीटमेंट चलता रहता था इनफर्टिलिटी का. और जब सालों बाद जाकर जब हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस हो पाता था, तब पता चलता था दैट ऑल दैट ट्रीटमेंट वाज वेस्ट, अल्टीमेटली द प्रॉब्लम वाज इन द हस्बैंड. बट today thankfully usually couples come together and they take it as a teamwork, and so husband and wife का day 1 से दोनों का ही the test should begin, because as I said almost 50% है दोनों में chances होने की कि one could be the contributing factor. काफ़ी cases में दोनों में ही हमें contributing factor मिल जाता है. So that way we can treat both simultaneously rather than wasting time on one and blaming the female, जो इंडिया में बहुत common होता है, एंड उसके बाद मेल पर आना.
सो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, फीमेल्स का अगेन मेनली अगर बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक लेडी की अगर नॉर्मल है तो काफ़ी हद तक हम रूल आउट कर सकते हैं कि हाँ काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है वो ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक नहीं होंगी। बट फिर भी हम कुछ बेसिक जो पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पे हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराते हैं देखने के लिए कि कोई ऐसा तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, कोई ओवरीज में कोई सिस्ट है, कोई मास है, कोई और मास है, कुछ ऐसा तो नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स एक सीमेन एनालिसिस जो हस्बैंड का होता है। ये 3 मेन टेस्ट है जो डे 1 पे ही आप करा सकते हो। उसके बाद आता है कि हाँ अगर ये 3 नॉर्मल हैं तो एक फीमेल का एक ट्यूब टेस्ट होना, बिकॉज वो थोड़ा सा एक इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाता है जो थोड़ा सा पेनफुल भी हो जाता है एक फीमेल के लिए, तो उसके बाद हम वो कराते हैं। सो ऑफ ऑल ऑफ दीज टेस्ट एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ यू आर एट अ लेटर एज, या मैं तो कहूँगी आज के ज़माने में डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व या फिर पुअर ओवेरियन रिजर्व की प्रॉब्लम आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि एग्स बनने ही ख़त्म हो गए हैं एक फीमेल को, तो एक सीरम AMH जो थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है पर अगर आप वो भी कराएंगे तो उससे आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी कि उनके ओवरऑल चांसेस क्या हैं इनफर्टिलिटी में आगे बढ़ने के, आगे कंसीव करने के, और किस मोड ऑफ मोडालिटी को उन्हें चूज़ करना चाहिए। बहुत भारी भरकम चीज़ें बताई हैं, आई थिंक लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आएंगी। तो पहली बात, इससे डरना नहीं है। मेक श्योर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास टाइम से जाएं जिससे कि वो आपको ये सब चीज़ों की क्लैरिटी और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिल पाए। आई मेक श्योर मैं ये सब नीचे कैप्शंस में कमेंट बॉक्स में मेंशन करूं जिससे आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपने टेस्ट के बारे में बताया, लोग बहुत डरते हैं एंड आई नो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है मेडिकल साइंस में, बहुत लोगों ने एक अच्छी एज पे जाके भी अपना नेचुरली और विद डॉक्टर्स हेल्प ऑब्वियसली बेबी कंसीव करा है। तो पहला प्रोसीजर क्या होता है अगर किसी को कराना है? तो जैसे सब जगह एक IVF की बात हम बहुत सुनते हैं, एक मैंने सुना है IUI करके एक प्रोसीजर है, तो ये क्या होता है जो पहले कराया जाता है? So IUI basically stands for intrauterine insemination. Now what IUI is that we basically couple it with ovulation induction. Now I'll talk about both of them. Ovulation induction is एक फीमेल का दवाई देके एग बनाना। अगर एग ऑलरेडी बन रहा था उसका ऑलरेडी, तो उस एग की क्वालिटी को और अच्छे से बनाना सो दैट एग बने। कुछ सिनेरियोज में एक नहीं तो 2 eggs बन जाए सो दैट द चांसेस ऑफ कंसेप्शन इंक्रीज। वी कपल दैट विद IUI. IUI इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इन विच व्हाट वी डू इज कि हस्बैंड जो है उनका सीमन सैंपल लेके उसको प्रोसेस करके उसमें से जो भी डेड स्पर्म्स हैं, जो उसमें इन्फेक्शन है, जो भी उसमें ख़राब चीज़ें हैं, उनको साफ़ करके एक अच्छा सैंपल बना के जिसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड अच्छे स्पर्म्स हैं, उसको फिर हम फीमेल की बॉडी में डालते हैं। दिस इज़ अ कम्प्लीटली एन OPD प्रोसीजर। इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, कुछ ज़्यादा उसमें कोई डरने की बात नहीं होती, कुछ में कोई बहुत इन्वेजिव नहीं है ये। एंड देन वी पुट इट इनटू द फीमेल्स बॉडी. Also, IUI is a very good option for those females where there is a problem with husband और wife के आपस में relations में ही problem है। जैसे females को अगर pain होता है during intercourse या फिर अगर husband को ही problem है तो IUI is a very good option. And then of course मेरठ में HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के काफ़ी ऐसे प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें हस्बैंड्स को अगर इनमें से कोई बीमारी है और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ को ना हो, तो IUI में स्पर्म वॉशिंग की टेक्निक से दे कैन do the give the sample and then we can put it into the female's body, and so इसमें फिर ट्रांसमिशन नहीं होगा because we would have washed the sample. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, आई डिड नॉट नो दैट ऐसी टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं। सो आई एम ग्लैड कि आप सबको भी मेरे साथ ये चीज़ें पता लग रही हैं। एंड नेचुरली IVF के बारे में बहुत सुना है, बहुत करा है। हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेल में नहीं जाएंगे कि IVF कैसे होता है, बिकॉज ये एक बहुत पर्सनलाइज चीज़ है, आप अपने डॉक्टर से जाके समझ सकते हैं। बट ऐसे जो एक सोसाइटी में चीज़ है, मेरे को भी किसी ने कुछ दिन पहले बोला कि नहीं ये बच्चा ना IVF का है, दैट्स व्हाई ऐसा है। तो ये थोड़ी सी मिथ जो हमारी सोसाइटी में है कि IVF वाले बच्चे बाकी बच्चों से अलग होते हैं, ऐसा है क्या? सो IVF के बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम पढ़ते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
जो बेबी का जो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ में कर रहे हैं वो सिर्फ स्पर्म और जो ओवम जो फीमेल का जो एग है उनका बस फर्टिलाइज कराते हैं और फर्स्ट 3 to 5 डेज ही ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में। पहले 5 दिन ही वो अपना ग्रो करता है लेबोरेटरी में, उसके बाद उसको फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाता है। बाकी के 9 महीने वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही प्रेगनेंसी होती है, एक आईवीएफ प्रेगनेंसी, एंड नेचुरली वो बच्चा वैसे ही ग्रो करता है जैसे एक नेचुरली कंसीव्ड बच्चा ग्रो करता है। उसमें गुण भी अपने माँ बाप के ही आते हैं और उस बच्चे में नेचुरली अपनी ही वो उसमें क्वालिटीज़ आती हैं जो वो आती अगर वो नेचुरली भी कंसीव करता। तो ये एक मिथ है कि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग होंगे, कि ये तो आर्टिफिशियली जो लोग समझते हैं, तो ये पूरा नेचुरल ही है, सिर्फ एक हेल्प मिल रही है डॉक्टर से उन्हें हाँ, बस कंसीव करने के लिए। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्यूबल ब्लॉक है, अगर सर्जरी कराने के बाद भी किसी लेडी की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और नहीं खुल पा रहे हैं, तो आईवीएफ से हमने क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो ट्यूब्स में होता है। फर्टिलाइजेशन होता है जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं, ये जो है ट्यूब्स में होता है। अगर किसी की ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है तो हम ये काम बाहर कर सकते हैं और उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। देन अगेन किसी की अगर एग क्वालिटी बहुत पुअर है या स्पर्म क्वालिटी बहुत पुअर है, तो इक्सी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसको कहते हैं, उसकी फैसिलिटी से हम एक एक स्पर्म छाट के फ्रॉम मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, आर एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो छाट के ओवम से फर्टिलाइज करते हैं एंड देन वी पुट इट इनटू द फीमेल्स बॉडी, सो ऑफ कोर्स द चाइल्ड इज ब्यूटिफुली बॉर्न जस्ट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। दिस इज़ अमेजिंग, आई एम लर्निंग सो मच। तो आई एम श्योर ऑडियंस को तो ये लग रहा होगा उन्हें बहुत इंसाइट मिल रही है। सो बहुत ही क्विक चीज़ें हैं जो हम जनरली क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं, आपको भी डीएम्स में आते होंगे, लोग पूछते हैं सॉल्यूशन क्या निकालें इसका। एक बेसिक सी चीज़, इनफर्टिलिटी ऑब्वियसली कोई जादू से सही नहीं हो सकती है। क्विक फिक्सेस जो थोड़ा सा लोग घर पे स्टार्ट कर सकते हैं कि चलिए कुछ तो करें हम इसके अलावा भी, वो क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहूँगी आज की जनरेशन के संग जो प्रॉब्लम है वो है स्मोकिंग, अल्कोहल एंड जंक फूड। ये 3 चीज़ें अगर आप 3 महीने के लिए बंद कर दें, आई टेल यू बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की ही फर्टिलिटी 15 से 20% तो वहीं बढ़ जाएगी जस्ट बाय दीज 3 मॉडिफिकेशंस। क्योंकि आजकल अल्कोहल इतना रैम्पेंट हो चुका है, सोशल ड्रिंकिंग, अब सोशल ड्रिंकिंग का पहले मतलब होता था महीने 2 महीने में एक ड्रिंक, अब सोशल ड्रिंकिंग का मतलब हो गया फ्राइडे को पार्टी, सैटरडे को पार्टी, संडे को पार्टी, तो हफ्ते में आधे दिन पार्टी तो ऐसे ही हो जाती है। तो स्लाइटली अल्कोहल स्मोकिंग पे थोड़ा 3 महीने भी अगर इफ दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स, बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स पे रिस्ट्रिक्शन होना। पीसीओएस हैज़ बिकम सो कॉमन इन वुमेन बिकॉज अगेन हम सबकी डेस्क जॉब हो चुकी है और हम सब जंक फूड खा रहे हैं और वीकेंड पर पार्टी कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी कॉमन विशियस साइकिल। जो मोटापा पीसीओएस कर रहा है, पीसीओएस मोटापा कर रहा है, एंड ये सब हमारे हार्मोन्स को ख़राब कर रही है इन द फीमेल्स एंड इवन मेल्स। देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स के जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस फैक्टर्स, ऑक्सीडेटिव रिस्क फैक्टर्स इनको कहते हैं, वो स्पर्म क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। ये तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, एंड एज अ साइकाइट्रिस्ट आई कैन वाउच नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर यू और नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ इट। तो ये बहुत एक मिथ सब जगह लगती है कि थोड़ा सा पी लेंगे तो इससे नुकसान कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर यू। एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ छेड़ दिया, तो मैं एक छोटा सा उस पर आपसे रैपिड फायर करना चाहती हूँ। पीसीओएस हर जगह सुनते हैं, इतना प्रेवलेंट है, मुझे लगता है थोड़ी देर भी आप नेट चलाओगे तो पीसीओएस तो आपको ऐसे ही सुनने को मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप मुझे येस और नो में उनका बताइए, थोड़ी लोगों को उससे और क्लैरिटी मिलेगी। पीसीओएस और पीसीओडी क्या ये सेम चीज़ है? हाँ जी, ट्रू। तो बस ये एक मिथ है आई थिंक जो सब जगह फैलती है कि ये ठीक हो सकता है और ये नहीं हो सकता। नहीं, ये सेम चीज़ें हैं, दे मीन वन एंड द सेम थिंग। बिल्कुल। पतले लोगों को पीसीओएस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट आजकल मैं देख रही हूँ कि पतले लोगों में पीसीओएस जिन्होंने सोचा भी नहीं था, कि घर वालों को भी अगर बोलो कि आप इसका वेट थोड़ा सा 2 kgs 3 kgs कम कर दो, तो घर वाले घबरा जाते हैं कि ऑलरेडी इतनी पतली है, इसका क्या वेट कम कराएं। बट नहीं, इट्स नॉट अबाउट द वेट, इट्स अबाउट द हार्मोन मेटाबॉलिक स्टेटस को ठीक करना बॉडी में। जब वो आधे घंटे भी अगर वो रोज़ दिन में एक्सरसाइज करेगी तो उसका मेटाबॉलिक स्टेटस ठीक होगा। इट्स नॉट अबाउट द केजीज कि ऑलरेडी फीमेल जो 45 kgs है उसको 43 kgs क्या करना है। इट्स अबाउट कि सो दैट द हार्मोन स्टार्ट रनिंग इन द बॉडी एंड बॉडी जो है वो एग अच्छे से बनाने लगे, पीरियड्स रेगुलर आने लगे, एंड ऑफ कोर्स जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाए।
बिल्कुल, अगेन ले दे के सारी बात आई थिंक लाइफस्टाइल इशू की बहुत ज़्यादा आई जाती है। अच्छा, PCOS ट्रीटेबल नॉट ट्रीटेबल? It is treatable, but again it's a chronic disease. It's never completely gone. अगर आपसे कोई डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए, तो नहीं, ये कम्प्लीटली ठीक नहीं होगा. इट इज़ डेफिनेटली एन इलनेस, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे, यू डोंट लेट योर वेट गो आउट ऑफ कंट्रोल, आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रखेंगे, तो ये चीज़ कंट्रोल में रहेगी. इट विल नॉट मैनिफेस्ट. बट देन अगेन, अगर आपकी प्रीडिस्पोजिशन है, अगर आपके जेनेटिक्स में है कि आपको PCOS होना है, तो आगे हो सकता है आपको डायबिटीज़ भी होनी है. तो डेफिनेटली यू कैन कीप इट अंडर कंट्रोल, बट यू कैन नेवर ट्रूली, आई वुड से ट्रूली लेट इट गो कि हाँ जी ठीक हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. तो उन सब ड्रिंक्स, दवाइयाँ और जो सारे चूर्ण मिलते हैं या जो बाज़ार में नेट पे ऐड भरे पड़े हैं, ये लीजिए PCOS क्योर हो जाएगा, उसके बारे में क्या कहना है? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ मेटा एनालिसिस, और हमारे पास बहुत दुनिया भर का लाखों करोड़ों औरतों का डेटा है कि पूरी तरह से तो ठीक नहीं होगा. डेफिनेटली कैल्शियम, विटामिन D, सप्लीमेंट्स, देन आपके इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जिनको हम कहते हैं, तो उन दवाइयों से आराम जो है, हमारा मेटाबॉलिक स्टेटस इम्प्रूव होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बॉडी में कम होता है, PCOS बेटर हो जाता, कंट्रोल में आ जाता है, ऑलमोस्ट बॉडी से क्षण खत्म हो जाता है PCOS का. बट इट इज़ अगेन, एज आई वुड से, इट इज़ नेवर ट्रूली कम्प्लीटली गॉन. सो इट इज़ मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल? No, cure. I won't use the word cure. I would use the word controllable. It's and controllable manageable. and Yes. manageable. Yes. So thank you so much, Dr. Sanya Singhal, and for your amazing insights. I'll make sure to leave the contact details below so that you can ask your queries and we both will be really happy to answer them for you. So thank you so much for joining us on this episode 1. I'm Dr. Rashi Agarwal and see you next time. Thank you so much, Dr. Rashi.